Hello everyone. The next topic is farm system. Agriculture or the farming has seen as a farm system. Agriculture या फार्मिंग को कृषि तंत्र के रूप में देखा जाता है. फार्म सिस्टम includes input, processes and output. फार्म सिस्टम के अंतर्गत निवेश, उसकी प्रक्रिया तथा आउटपुट या उत्पादन होते हैं. The important inputs are seeds, fertilizers, machinery and labor. जो महत्वपूर्ण इनपुट्स हैं उनके अंतर्गत बीज, उर्वरक, मशीनरी तथा श्रम हैं. Some of the operations involved are plowing, that means turning out the soil, sowing the seeds, irrigation, that is watering the plant or crops, weeding, that is the removing the unwanted plants and harvesting. इनमें जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है फार्म सिस्टम के अंतर्गत या कृषि तंत्र के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसके अंतर्गत मिट्टी की गुड़ाई, बीजों का बोया जाना, फसलों की सिंचाई, अवांछित पौधों को निकालना तथा फसल तैयार होने पर उसकी कटाई या हार्वेस्टिंग सम्मिलित है. The output from the system include crops, wool, dairy and poultry products. फार्म सिस्टम का जो आउटपुट है इसके अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी पदार्थ और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आते हैं. So here we can see this picture. This picture I have inserted for the better understanding of the output and the input. So here we can see that output, it includes machinery, seeds, chemicals. Processes, it includes plowing, sowing, spraying, and output is the harvested crops. Here we can see. Some of the physical inputs are also required for the agriculture or the farming, like sunshine, rainfall, temperature, soil, slope. Without this physical input, we can't imagine about the agriculture. So इसके अलावा फिजिकल इनपुट भी बहुत ज़रूरी होते हैं कृषि के लिए, जिसमें सूर्य की रोशनी, बारिश, तापमान, मिट्टी और स्लोप है. इसके बिना हम एग्रीकल्चर के बारे में सोच भी नहीं सकते. ह्यूमन इनपुट्स, इट इंक्लूड्स स्टोरेज, लेबर, मशीनरी एंड केमिकल्स. Now types of farming. There are two types of farming: subsistence farming and commercial farming. Commercial farming includes grain commercial farming, mixed farming and plantations. Subsistence farming is classified into two types: intensive subsistence agriculture and primitive subsistence agriculture. Primitive subsistence agriculture, it includes shifting cultivation and nomadic herding. Now subsistence farming. So what do you mean by the subsistence farming? This type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. इस तरह की कृषि या जो खेती होती है वह किसानों के द्वारा अपने परिवार के भरण पोषण या अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है. दैट मीन्स इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पस. इसका मतलब है यह कमर्शियल पर्पस में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है. ट्रेडिशनली low levels of technology and household labor are used to produce on a small output. पारंपरिक रूप से बहुत ही छोटे पैमाने पर तकनीक का और घरेलू श्रम या घर के जो मेंबर होते हैं वही खेतों पे काम करके हाउस होल्ड लेबर के रूप में एक काम करते हैं और इसका जो उत्पादन होता है यह बहुत ही छोटे पैमाने पर या बहुत ही कम होता है. Subsistence farming are classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. Subsistence farming को दो भागों में बांटा गया है: intensive subsistence farming and primitive subsistence farming.
In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस कृषि में फार्मर जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर बहुत ही साधारण औजार के साथ और बहुत ज़्यादा श्रम करके उपजाता है या खेती करता है। राइस इज़ द मेन क्रॉप। अदर क्रॉप्स इंक्लूड wheat, maize, pulses and wild seeds। इस तरह इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का जो मुख्य क्रॉप है वो है चावल, और इसके अलावा जिन फसलों की खेती की जाती है उनमें गेहूँ, मक्का, पल्सेस दैट मीन्स द ऑल टाइप ऑफ द पल्सेस, सभी तरह की दालें और सभी तरह के तेल या तिलहन आते हैं। Primitive subsistence agriculture includes shifting cultivation and nomadic herding। Primitive subsistence agriculture के अंतर्गत shifting cultivation और nomadic herding आते हैं। Now shifting cultivation। Shifting cultivation, in a shifting cultivation, a plot of land is cleared by felling the trees and burning them। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक छोटे से ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर यह शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर जितने भी पेड़ होते हैं उनको कट कर दिया जाता है तथा वहाँ का जो वेजिटेशन होता है उसे जला दिया जाता है। द एशेज आर देन मिक्सड विथ द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, yam, potatoes and cassava are grown। और वेजिटेशन को जलाने के बाद जो राख होते हैं उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और इस तरह शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जिन क्रॉप्स की खेती की जाती है वो होती हैं मुख्यतः मक्का, यम, आलू तथा कसावा। After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot। और जब मिट्टी की फर्टिलिटी उर्वरता कम होने लगती है तब उस लैंड को छोड़कर कल्टीवेटर्स किसी दूसरे प्लॉट की तलाश में मूव कर जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर यानी काटो और जलाओ एग्रीकल्चर या कृषि के नाम से भी जानते हैं। Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and the Northeast India। Shifting cultivation का प्रैक्टिस अमेजन बेसिन के बहुत ही घने जंगलों में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में और दक्षिण पूर्वी एशिया में, साथ ही साथ भारत के उत्तर पूर्वी भागों में किया जाता है। नोमैडिक हर्डिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर। इस तरह की कृषि में पशुपालक अपने जानवरों के साथ जानवरों के चारे और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हैं या घूमते रहते हैं। Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid region of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir। नोमैडिक हर्डिंग जो है यह प्रैक्टिस किया जाता है मुख्यतः बहुत ही कम बारिश वाले क्षेत्रों में या जिन स्थानों पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है उन क्षेत्रों में जिसमें सहारा, मध्य एशिया और भारत के भी कुछ भाग आते हैं जिनमें राजस्थान और जम्मू कश्मीर सम्मिलित है। शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। तो इस तरह की खेती में जिन जानवरों का पालन किया जाता है उन जानवरों में भेड़, कैमल, ऊँट, याक तथा बकरियां सम्मिलित हैं। In the next class, I will explain about the commercial farming. Thanks for watching my videos. Please like, share and subscribe my channel.